परमेश्वर के दास पास्टर विद्यासागर जी हमारे साथ हैं। आज वो हमारे साथ परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। तो आइए हम सब उनका स्वागत करते हुए ये समय हम उनको सौंपते हैं। मैं रिक्वेस्ट पास्टर विद्यासागर टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेक दिस टाइम एंड लीड अस इन गॉड्स वर्ड। Well, good evening. शुभ संध्या काल। I really thank God and praise God for the opportunity that God has given all of us to be present in this Hindi worship service. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से हमारे जीवन में मौका दिया किस प्रकार इस हिंदी सभा के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को स्मरण कर सकूं। It's always a joy to be in God's presence, but as it is summer and it is right in the heat of the day, yet you made it time to be in God's presence, and we appreciate that. ये हमेशा खुशी की बात रहती है कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, परमेश्वर के वचनों को ध्यान मनन करें। परंतु इस गर्मी के मौसम में हालांकि बहुत मुश्किल समय है, फिर भी आप लोगों ने समय को निकालकर इस प्रकार यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचनों को आप सीखने के लिए अपने आशा को दिखा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। It is always when we get to in the heat of the day, there is a Bible verse that we can remember, that is from Psalm number 121. और इस गर्मी के मौसम में परमेश्वर के वचन से एक भाग हम जानते हैं जो भजन संहिता 121 में पाया जाता है, Which says, वो इस प्रकार कहते हैं, the Lord shall keep you from the heat of the day, and even let me read that. 60 Yeah, Psalm number 121, verse number 6. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. और उसके छठवें वचन में लिखा है, भजन संहिता 121 उसके छठवें वचन में, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। So whenever you get into the sun, always remember these words, and by faith believe that God is going to be with you, and take necessary precautions and take care of your health. और जब कभी आप धूप में कहीं बाहर निकल रहे हैं या किस काम से बाहर निकल रहे हैं तो आप इन परमेश्वर के प्रॉमिसेस को याद रखिए जो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिन के धूप से बचाने वाला परमेश्वर हूँ। Well, once again, I really thank God for Pastor Wilson, and really thank God for God has given him good health, and we can see him right here standing in our midst. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पास्टर विल्सन जी के लिए। परमेश्वर ने उन्हें अच्छी सेहत प्रदान की है, एक बार फिर से यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांट पा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Especially, we also need to appreciate the Hindi church for fervently praying for your pastor, or for our pastor, Pastor Wilson, and God has answered our prayers, and he is in good health now. हिंदी कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हिंदी कलीसिया हमेशा जो है पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, विल्सन पास्टर के लिए और हम सबों के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। Well, let us turn our Bibles to Daniel chapter number 11, verse number 32. आइए मेरे साथ मिलकर दानियल नबी की किताब में आइए, उसका 11वां अध्याय उसके 32वें वचन में हम आते हैं। I'll be reading from the latter part. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. उसके आखिरी भाग में पढ़ रहा हूँ, वहाँ लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our gracious God, loving and living Heavenly Father, Lord, as we now turn to the meditation of your word, I pray that you would open our understanding and that you would lead us and guide us and help us so that we may understand wondrous things from your word, Lord. Lord, I pray that you would strengthen all of us. Lord, I pray that you would really help us to concentrate on what you have to say and help us by faith receive what you say, and by faith help us to believe and also do the things that you require of us, Lord. As I once again submit all of us into your mighty care, in Jesus' blessed name we ask and we pray. Amen. Well, once again I thank God and praise God for this opportunity that God has given all of us. एक बार फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर से मौका दिया, इस प्रकार हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सीख पाते हैं। Well, Daniel chapter number 11, verse number 32 says, the people who know their God, they shall be strong and they shall do great exploits. और यहाँ पर उसके 11वां अध्याय उसके 32वें वचन में हम पाते हैं कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम को देखेंगे और करेंगे।
The Bible is full of the knowledge of God. बाइबल जो है परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर है And any person who is taking time to understand about God has to come to the Bible. जो भी व्यक्ति परमेश्वर को जानना चाहते हैं या परमेश्वर को समझना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो बाइबल को पढ़ें, बाइबल के करीब आएं। All that is in the world is a worldly wisdom, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब दुनिया का ज्ञान है and with all the worldly wisdom, man can never understand God properly. और दुनिया के सारे ज्ञान से कभी भी मनुष्य जो है परमेश्वर को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। So, in order to properly or in a right way understand who God is, one has to come to the Bible. इसलिए कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर को सही रूप से जानना चाहते हैं तो उसे चाहिए कि वो बाइबल को पढ़े या बाइबल के करीब आए। So, the knowledge of the Bible or knowledge of God literally is so much important in every Christian's life. और परमेश्वर का ज्ञान जो है या परमेश्वर के बारे में जानना जो है हर एक विश्वासी या मसीह भाई के जीवन में होना जरूरी है। So, a lot of times when we think about the knowledge of God, we think as if we are learning from the books. कई बार हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम जो है किताबों को पढ़कर हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। But in that way, any person cannot really understand God, but one has to understand God experientially. और उस प्रकार पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर को ठीक रूप से नहीं जान सकते हैं, परंतु अगर परमेश्वर को जानना है तो हमारे व्यक्तिगत रूप में हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसके द्वारा ही हम जान पाते हैं। So God of the Bible wants an experience with all of us today. और इस बाइबल का जो परमेश्वर है वो चाहते हैं कि हम सब व्यक्तिगत रूप से उस परमेश्वर को हम जान पाए, उन्हें समझ पाए। So this relationship with God definitely will change our lives altogether. और ये परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो सचमुच में हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। So the Bible says there are people who never knew their God. और बाइबल बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। And those people who never knew their God, they are perishing even in this world. और जो लोग कभी परमेश्वर को नहीं जाने हैं वे लोग इस दुनिया में नाश हो रहे हैं। And there is a Bible verse which also says that without the knowledge of God, people are going into captivity. और बाइबल में एक और वचन इस प्रकार बताता है कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं वे जो है बंधनों में बंध जा रहे हैं। So when you know the truth, we can live by the truth. और इसलिए हम जब सत्य को जानते हैं तो हम सत्य के द्वारा जीवित रहते हैं। So when we do not know the truth, definitely we are in darkness and we are really living in some kind of delusion. और इसलिए जब हम सत्य को नहीं जानते हैं तो हम अंधकार में रहते हैं और अंधकार में रहने के कारण हम बहुत सी बातें जो है केवल विचारों में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। So it is for that reason Jesus says, you shall know the truth and the truth shall set you free. और इसलिए यीशु मसीह अपने शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So apart from the truth there is no freedom. और इसलिए सत्य से हटकर कोई स्वतंत्रता नहीं है। And apart from the truth there is no light in all of our lives. और इसलिए सत्य को अगर हम हटा दें तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी रोशनी को हम नहीं देख सकते हैं। So it is for that reason it is so important every believer has to know their God very personally. और इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी जो है वो अपने व्यक्तिगत रूप में बहुत ही व्यक्तिगत रूप से अपने परमेश्वर को जान सके। So that's what Daniel is saying here. Daniel says that if any person know their God, they shall be strong. और इसलिए यहाँ पर दानियल जो है उस बात को याद दिला रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है वो अपने आप में मजबूत होता है। So that also means any person who are not knowing their God shall be weak. और इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं जानते वो दुर्बल हो जा रहा है। So it is for that reason knowing God and standing strong in times of adversity is so important in all of our lives. और इसलिए परमेश्वर को जानना और मजबूती से खड़े रहकर परेशानियों में मजबूती से खड़े रहना जो है अपने आप में बहुत जरूरी है। So the book of Daniel is a great testimony of people who knew their God very personally. और दानियल की किताब जो है बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को याद दिलाती है कि लोग परमेश्वर को जानते थे। These people in the book of Daniel, they did not go to a seminary. और जो बाइबल की इस किताब में जो जिन लोगों को हम देखते हैं वो लोग किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गए। They did not go to any kind of theological university, but they knew their God very personally. और वो किसी थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में नहीं गए परंतु वो जानते थे कि उनका परमेश्वर कौन है, व्यक्तिगत रूप से वो उस बात को जानते थे। And these people are not experienced people.
और वे लोग बहुत ज़्यादा अनुभवी भी नहीं थे। These people who are in the book of Daniel, they're only in their teenage and yet they knew their God. और वो केवल अपने टीन एज के समय में ही वे परमेश्वर को मुलाकात होता है उनका, और परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानकर उन्हें समझ पाते हैं। Lot of times with the age, with the advancement of age, we understand that we will get to know God better in our lives. और कई बार हमें लगता है कि हम उम्र के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ हम परमेश्वर को और भी अच्छे रूप से जान पाएंगे, हम ऐसे सोचते हैं। But that's only a delusion, because when we give our attention to the things of the world, we can never grow with God. परंतु वो केवल वो तो सत्य नहीं है, परंतु जब तक हम व्यक्तिगत रूप से अपने परमेश्वर के साथ समय को नहीं बिताते हैं तब तक हम परमेश्वर को ठीक रूप से जान नहीं पाते हैं। So it's for that reason in the Bible there are so many people just like John the Baptist who was or who served God for only 6 months and yet he knew his God very very personally. और बाइबल में हम उसी प्रकार बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। उसमें से एक व्यक्ति का है जो जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो केवल 6 महीने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ थे, परंतु यीशु मसीह कौन है व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ही अच्छे रूप से जान पाए हैं। So it's not about the age, it's only about the time we invest in knowing about God. और इसलिए हमारा उम्र नहीं है, परंतु जितना ज़्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Let us turn to Daniel's chapter number 1 verse number 8. आइए मेरे साथ मिलकर दानियल की किताब उसका पहला अध्याय में आइए, उसके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। Bible says, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. और वहाँ पे लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने जीवन को अपवित्र ना करेगा। What made this teenage boy to make such a kind of drastic decision in his life? और यहाँ पर एक बालक के रूप में या जवान बच्चे के रूप में उसके जीवन में ऐसा क्या घटा कि वो इस प्रकार का निर्णय ले पाया है। He could have enjoyed the food of the kings. He could have enjoyed the food of or delicious food that is served to him. वो चाहता तो वो वहाँ पर राजा के पास रखे हुए दाखमधु या भोजन से वो आनंदित होकर अपने जीवन को बिता सकता था। But there is one thing that stopped Daniel from enjoying the king's food. परंतु एक चीज वहाँ दानियल के जीवन में देखते हैं जो उसे परमेश्वर जो राजा के भोजन से आनंदित होने से रोका। And that is the knowledge of the holy God. और वो जो है वो उस पवित्र परमेश्वर का ज्ञान है। And he understood that the God whom Daniel is serving is a holy God. और दानियल जो है अपने जवानी के दिनों में भी जान पाया कि जिस परमेश्वर की वो सेवा कर रहा है वो पवित्र परमेश्वर है। It is for that reason he made sure that he would not defile himself with the king's meat. और इसलिए वो अपने मन में ठान लिया कि वो राजा के भोजन से अपने आप को अपवित्र ना करेगा। And God really honored the commitment that Daniel had made in his life. और इसलिए परमेश्वर ने दानियल को जो है पूर्ण रूप से उनको अपने सन्मुख उन्होंने एक आदर का पात्र माना। And we understand Daniel proved to the world through things that he has done that God is a holy God. और दानियल जो है अपने जीवन के द्वारा उस बात को बहुत ही अच्छे रूप से प्रकट किया कि उसका परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। So when we believe our God is a holy God, that is to say, we need to conduct ourselves in a right and worthy manner, meaning in a holy manner. और इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है तो हमें चाहिए कि हमारे चाल चलन में, विचारों में हम उस पवित्रता को हम समझ सके, उसके अनुसार चल सके। And 1 John also says, if I say that I am in light and yet live in darkness, I am lying to myself. और पहला यूहन्ना के पत्री में भी हम पाते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रकाश में चल रहा हूँ और मैं अंधकार के कामों को कर रहा हूँ तो मुझ में प्रकाश नहीं है। So if there is no equality or equation between what I am doing and what I am saying and what I am believing, that is to say that I am living a life that is a lie. और इसलिए हमारे बोलने में और करने में, कथनी में और कहने में अगर अलग अलग बातें हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। So Daniel believed his God is a holy God and he conducted himself in a holy manner. और दानियल जो है इस बात को विश्वास किया कि उसका परमेश्वर पवित्र है और उसी प्रकार अपने जीवन में भी, अपने चाल चलन में भी उन्होंने पवित्रता को दिखाया। It is for that reason God honored him. Even in verse 20 we understand he is the important person who was selected. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुना और वहाँ पर परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें अपना दास भी बनाया। And we understand he was better 10 times than the people of the land of Babylon. और वहाँ पर बबीलोन के देश में बहुत सारे जो लोग थे, ज्ञानी थे, उसमें से उनसे बढ़कर 10 गुना ज्ञान इस दानियल के जीवन में हम पाते हैं।
how this all happened, it's only because of a simple commitment of a person who knew his God very personally. और उसके पीछे का कारण ये है कि दानियल जो है वो जानता था कि उसका परमेश्वर कौन है और उसे अच्छे रूप से जान पाया, इसीलिए उनके जीवन में उस बात को हम देख पाते हैं। Dear Christian, understand the God whom we are serving today is a holy God, and He wants us, all of us, to be holy in everything we do. और इसलिए एक मसीह होने के नाते हम सबको इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और इसलिए हमें पवित्रता में अपने जीवन को बिताना है। Well, turn to the second aspect, Daniel chapter number 2, verse number 16. दूसरी बात को हम देखते हैं दानियल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 16वें वचन में। I'll be reading verse 5. मैं उसके 5वें वचन को पढ़ना चाहूंगा। राजा के कसदियों ने उसको उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओ तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारा घर फुकवा दिया जाएगा। Well, we understand tukde, right? Here, Daniel or Nebuchadnezzar had a dream, और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आया and he wants to know the meaning of the dream. और वो चाहता था कि उस स्वप्न का अर्थ कोई बताए उसे। And the tragedy is he forgot the dream. और बहुत ही दुख की बात यह है या असंभव होने वाली बात यह है कि वो अपने स्वप्न को भूल गया। And Nebuchadnezzar is giving a challenge to the wise men of the land of Babylon. If you ought to say the dream and also its meaning. और राजा वहाँ पर लोगों के जीवन में एक प्रश्न को रखते हैं कि आपको चाहिए कि आप उस स्वप्न को भी बताएं और उस स्वप्न के अर्थ को भी आप बताएं। And we also understand there is a deadline given. और हम जानते हैं कि वहाँ पर एक तारीख भी रखा गया। And if people are unable to say the dream and also its meaning, they would be killed. और उस तारीख तक अगर वे लोग उस स्वप्न को और स्वप्न के अर्थ को ना बताएं तो वो ज्ञानी लोग सब मारे जाएंगे। What we do if we are in the same situation? हम क्या करेंगे अगर हम उस प्रकार की परिस्थिति में अगर है तो? People like me definitely will flee from Babylon. और मेरे जैसा व्यक्ति तो जरूर उस बबीलोन से भाग जाएगा। Because we love our lives. क्योंकि हम अपने जीवन को प्यार करते हैं। But Daniel has done something different. परंतु दानियल जो है वो कुछ हट कर किया। This is a very challenging situation in the life of Daniel. ये समय जो है दानियल के जीवन में बहुत ही मुश्किल का एक समय था। But in that challenging situation, he understood God is sovereign over everything. और उस तकलीफ के समय में भी वो दानियल जो है जान पाया कि उसका परमेश्वर जो है वो सार्वभौमिक है। He believed himself that God is sovereign over everything and every point that is happening in every people's life. और उसका विश्वास था कि उसका परमेश्वर जो है सार्वभौमिक है और वो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो उनकी इच्छा के बगैर नहीं घट सकती। It is his belief that God has complete control over the life of Nebuchadnezzar. और उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उनका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो नबूकदनेस्सर को अपने अधीन रख सकता है। He thought for himself, I may not know the dream, but God of the heavens definitely will know the dream and everything that's happening in the life of Nebuchadnezzar. और वो कहते हैं कि मुझे तो उस स्वप्न के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे परमेश्वर को उस स्वप्न के बारे में मालूम है और वो बताएंगे और जिसके द्वारा मैं उस स्वप्न को बता सकता हूँ। And this knowledge of God saved not only himself but all the wise men of Babylon. और ये दानियल का जो परमेश्वर के प्रति जो ज्ञान था उसके द्वारा ना केवल दानियल का जीवन बचाया गया परंतु वहाँ पे जितने ज्ञानी थे उनका भी जीवन बचाया गया। He went back home and he called his friends and they all kneeled in the presence of God and they prayed for the dream and also its meaning. और दानियल अपने घर गया, अपने मित्रों को बुलाया, उन सब के साथ मिलकर उन्होंने प्रार्थना की और उन सब के प्रार्थना को देखते हैं वहाँ पर। And we understand even in verse 28. और दूसरा अध्याय उसके 28वें वचन में हम इस प्रकार पाते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वप्न में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होना है। तेरा स्वप्न और तेरा जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वह यह है। And God graciously answered the prayer of Daniel and he has given him the dream and also its secret. और यहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है दानियल को उस स्वप्न के बारे में बताया और साथ ही साथ उस स्वप्न के अर्थ को भी वो उसका बता रहे हैं। But the beautiful thing in the life of Daniel is that Daniel gave credit to God himself. और खुशी की बात यह दानियल के जीवन से हम जो सीख सकते वो ये है कि दानियल ने जो है परमेश्वर को मुख्य जगह को प्रदान किया। And we also understand even verse 30, he says that, but as for me, the secret is not revealed to me because I'm great, but it is because of God who is great.
उसका दूसरा अध्याय उसके 30वें वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार दानियल अपने आप को कम करते हुए परमेश्वर को ऊंचा उठाते हुए उसने कहा कि जो भेद मैंने खोला, मुझ पर खोला गया है, वो मेरे ज्ञान के कारण नहीं, मेरे बुद्धि के कारण नहीं, परंतु ये केवल परमेश्वर के कारण ये मुझे मालूम चला है। So every Christian today ought to remember that God is sovereign over everything that is happening in and through our lives. और इसलिए हर एक विश्वासी, हर एक मसीह भाई बहन जो है इस बात को जाने कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर जो है सार्वभौमिक है। And we also need to understand not to be discouraged in times of adversity. और इसलिए जब तकलीफ के समय से हम जब गुजरते हैं तो कभी भी हम निराश ना हो, हताश ना हो। Just like Daniel, look to God who is sovereign over everything that is in our परंतु lives. दानियल की तरह हम भी जो है परमेश्वर की ओर ताकें और परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, इस विश्वास में आगे बढ़ें। When we have this knowledge, we can be spared from anxiety. अब जब हम इस प्रकार के ज्ञान में बढ़ते हैं तब हम जो है बहुत सी चिंताओं से अपने आप को बचा सकते हैं। Lot of times anxiety is the number one disease that is right now. और हम सब जानते हैं कि कई बार जो है हमारे जीवन में चिंताएं जो है वो सबसे मुख्य कारण है बीमारी के लिए। And we also understand Daniel could be anxious about tomorrow. He could be anxious about his very own life. पर हम जानते हैं कि दानियल जो है वो भविष्य के बारे में या कल के दिन के बारे में सोचकर शायद वो चिंतित होगा। But he never was anxious about anything that is happening in life, but he looked to God. परंतु कभी चिंतित ना हुआ, परंतु वो परमेश्वर की ओर देखा। Because he believed that God is sovereign over his life. और उसने विश्वास किया कि उसका परमेश्वर जो है उसके जीवन में सार्वभौमिक है। And he also believed that there is nothing impossible for God when we go kneel down in the presence of God. और इसलिए जब वो परमेश्वर के पास गए और घुटने टेके तो उनको समझ था, उनको मालूम था कि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। From this episode we understand in every aspect of our lives the Lord wants you and me to kneel down and ask of his help in times of adversity. और हम सब इस बात से सीख सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो हम परमेश्वर के पास जाएं, घुटने टेकें और उनसे मांगें। When we go to people we are disappointed. जब हम लोगों के पास जाते हैं तो कई बार हम हताश हो सकते हैं। And when we take counsel from people we are misled. और अगर हम लोगों से हम बात करें या पूछें या काउंसलिंग लें तो हम शायद हो सकता है कि हमें वो गलत मार्ग पर ले चले। But when we go into the presence of God the Lord shall lead us home. परंतु जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर जो है हमें सही मार्ग पर चलाते हुए उनके करीब आने का मौका देते हैं। No person who came to God definitely is not discouraged in his life. और इसलिए जो भी परमेश्वर के करीब आता है वो कभी भी जो है निराश और हताश नहीं हो सकता। They will ultimately be encouraged by his presence and his leading in his life. और सचमुच में परमेश्वर का जन जो है परमेश्वर के पास आकर जो है परमेश्वर की बातों को सुनकर उत्साहित होकर परमेश्वर की आराधना कर पाता है। So the simple knowledge of God spared the life of Daniel and also the life of all the wise men of Babylon. और एक साधारण सा ज्ञान दानियल की और उसी प्रकार उस ज्ञान बहुत से ज्ञानियों के जान को भी बता पाया है। We'll be moving on to the third aspect, chapter number 3, तीसरे verse बात number में हम जाते 16. हैं, तीसरा अध्याय उसके 16वें वचन में हम तीसरी बात को देखते हैं। तीसरा अध्याय उसका 16वां वचन, दानियल उसका तीसरा अध्याय उसके 16वें वचन इस प्रकार लिखा है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। Here there is another important thing that is happening in the land of Babylon. और यहाँ पर एक और घटना को देखते हैं जो बबीलोन शहर में एक बहुत ही प्रमुख रूप से घटना को हम देखते हैं। Nebuchadnezzar was mad again. और हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर एक राजा, एक व्यक्ति है। And we also understand he now erected his very own image and he wants all the people to worship that image. और वो नबूकदनेस्सर राजा जो है अपने पुराने छवि को तैयार करते हैं, उसकी एक मूर्त बनाते हैं और वो कहते हैं कि सभी लोग उस मूर्त की पूजा करें। And Nebuchadnezzar himself know that he is not God. और नबूकदनेस्सर को मालूम था कि वो स्वयं राजा, वो स्वयं भगवान नहीं है। Because in the previous episode we saw that Nebuchadnezzar was ignorant of his very own dream. क्योंकि पिछले बातों में हम जानते हैं कि जब नबूकदनेस्सर को जो स्वप्न आया तो अपने स्वप्न तक वो समझ नहीं पाया। इससे हम समझ सकते हैं कि वो स्वयं ईश्वर नहीं है। And keeping all these infirmities in his life, and he projected himself to be God in the land of Babylon. उस नबूकदनेस्सर के जीवन में सारी कमियों के होने के बावजूद भी नबूकदनेस्सर समझने लगा, सोचने लगा कि वो जो है ईश्वर है। And because people around him said that you are the true and the living God and you ought to be worshipped. और उसके चारों तरफ जो राजा के चारों तरफ जो लोग थे वो उस राजा को खुश करने के लिए कह रहे थे कि आप जो है वो ईश्वर हैं, आप पूजनीय हैं। And a lot of times if you are in authority you need to be very cautious about the people around you.
और इसलिए जब हमें परमेश्वर कोई अधिकार को देता है तो हमें बहुत सावधान रहना है हमारे चारों तरफ के लोगों के साथ। Lot of times people around us, definitely they flatter us to fulfill their own desires. और हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग जो है वो हमें खुश कर कर अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों को या व्यक्तिगत चीज़ों को पूरा करने के लिए कई बार हमें गलत गलत बातों से हामी देते हैं। And even Nebuchadnezzar, the great Nebuchadnezzar, is into such a kind of trap in his life. और यहाँ पर नबूकदनेस्सर के जीवन में उसी प्रकार की घटना घटी और उस जाल में वो फंस गया। And people around him said, "You are God," and he believed himself to be God. और लोगों ने कहा कि तुम ईश्वर हो और अपने आप को वो ईश्वर समझने लगा। And he also erected the image, and he wants the land of Babylon to worship that image. और इसलिए उन्होंने अपने रूप में एक मूरत को बनाया और पूरे बबीलोन के देश के कहा कि आप इस मूरत की पूजा करें। And yet again, the teenage boys comes into place. और यहाँ पर एक बार फिर से हम देखते हैं कि वो जवान बच्चे जो है वहाँ पर हम उनके व्यक्तिगत विश्वास को हम देखते हैं। They learned some important lessons about worshiping even in the land of Israel. और इन जवान बच्चों के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि वे लोग विदेश में रहकर भी सच्चे और अच्छे परमेश्वर की आराधना कैसे करना है उन्हें मालूम था। And they knew from the Bible or from the scriptures that God alone is to be worshipped. और वे परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पष्ट रूप से जानते थे कि केवल परमेश्वर की ही वे उपासना करें। No matter how a man is very great or emperor is very great, he is still a man. और चाहे राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना हो, उस पर भी वो व्यक्ति ही है, परमेश्वर नहीं है। And there is a lot of difference between God and man. और इसलिए मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बहुत अंतर है। And man is finite and God is infinite. मनुष्य जो है वो केवल सीमित मात्र है, परंतु परमेश्वर जो है वो असीम है। Any emperor or any pharaoh and all these people, they are dead, buried, and they are stinking in the ground today. चाहे हम किसी भी राजा को देख लें, चाहे फरो हो या नबूकदनेस्सर हो, वे सब मारे गए, गाड़े गए और वे जो है वो कब्र में हैं। But we understand God being the same yesterday, today, and forever, and He will be the same even for eternity. और इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है आज कल और अब तक से एक सा है, वो हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। And it's for that reason He alone is to be worshipped. और इसलिए वो केवल ही आराधना के योग्य है, Because He is worthy of all our worship today. क्योंकि वही मात्र हमारी आराधना के योग्य है। And this simple knowledge of God, वो साधारण सा ज्ञान परमेश्वर के बारे में, and with that simple knowledge of God, these people abstained from worshipping the idol that Nebuchadnezzar has set up. और उस साधारण से ज्ञान के कारण अपने परमेश्वर के बारे में वे लोग जो है वो नबूकदनेस्सर की आराधना करने से अपने आप को अलग रखे। And they made a decision in their lives that और उन्होंने एक निर्णय को लिया अपने जीवन में, we are not going to worship even if you throw in the fiery furnace. और उन्होंने एक निर्णय को लिया कि अगर आप हमें धधकते हुए भट्टे में के आग में डाल दें तब भी हम आपकी आराधना नहीं करेंगे, Or God is able to save us. क्योंकि वो विश्वास रखते थे कि हमारा परमेश्वर जो है हमें छुड़ा सकता है। And even if He is not going to save us, and yet we will not bow down to the image that you have set up. और अगर हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा ना भी दे फिर भी हम आपकी उस मूरत के आगे झुककर आराधना नहीं करेंगे। These teenage boys understood they not only to expect good from God, they also were ready to expect bad even from God. और ये जो जवान बच्चे हैं वो केवल परमेश्वर से अच्छी अच्छी चीज़ों को ही मांग कर खुश नहीं थे, परंतु तकलीफें आने पर भी वो परमेश्वर उनके साथ है उस बात को जानते थे। And that's what we see even in the life of Job. और इसी प्रकार का जीवन हम अय्यूब के जीवन में भी देख सकते हैं। And as he's speaking to his wife, he says, "Can we expect only good from God and not bad from God?" और वो अपने पत्नी से बताते हुए कहते हैं कि क्या हम परमेश्वर से केवल अच्छी अच्छी बातों को ही प्राप्त करें, क्या तकलीफ की बातें परमेश्वर हमें देते हैं तो क्या हम उन्हें तिरस्कार करें? And at the end of the day, even if it's good or even if it is bad, if that is coming from God, that will eventually benefit us. और परमेश्वर की ओर से जो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी चीज़ हमें मिलता है, अंत में हम क्या पाते हैं कि वो चीज़ें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए आशीष का कारण होती We है। are not interested in what it is making with us or with our lives very presently, but we are only interested in the thing that is going to bring out from our very own lives. और हम केवल अपने जीवन में जो है जो हमारे जीवन में मिलता है उसके द्वारा ही नहीं, परंतु जीवन से हटकर जो और परमेश्वर की जो योजना है उसे जानना ही हमारे लिए जरूरी है। And we understand from these teenage boys, good or bad, we are still going to praise the Lord. और इन बच्चों के जवान बच्चों से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, हम परमेश्वर की आराधना मात्र हम करेंगे। And we understand God honoring the decision of these teenage boys. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने
इन जवान बच्चों के उस विश्वास को उन्होंने उनको बहुत ही आदर किया। And we understand God standing in the furnace along with them as they are suffering. और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर स्वयं इन लोगों के साथ उस धधकते हुए भट्टे में खड़े थे। And people who came to throw them into the furnace were dead. और जो लोग इन तीनों को जो है धधकते हुए भट्टे में डालने आए थे वे लोग जल के नाश हो गए। But we understand these 3 or 4 people are still alive and nothing of the sort of flame is touching their bodies. परंतु ये 3 बल्कि 4 जो उस भट्टे में थे, धधकते हुए आग के भट्टे में थे, वे सुरक्षित थे और सुरक्षित वहां पर हम देख सकते हैं। That is how God wants to do with our lives sometimes. और ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार कर सकते हैं। God could have removed the fire, हो सकता है कि परमेश्वर वहां से उस आग के भट्टे को हटा सकते थे। but we understand God has hardened the heart of Nebuchadnezzar by increasing the fire 7 times. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस नबूकदनेस्सर के हृदय को और भी मजबूत किया ताकि उस भट्टे को 7 गुना और भी गर्म कर सके। And in that difficult time, we understand in that severity, God was present with them. और उस तकलीफ के बीच में भी, उस बहुत सारे तकलीफ के बीच में भी हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर उनके मध्य खड़ा था। And the greater the pressure, the greater the temptation, and the greater glory is to God Himself. और जितना ज़्यादा परेशानी से होकर हम गुजरते हैं उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। And for that reason, Apostle Paul says, I glory in all my temptations. और इसलिए प्रेरित पौलुस जो है अपने जीवन में कहते हैं कि मैं अपने हर कमजोरियों में मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। Because it eventually is bringing glory unto God. क्योंकि इन सब तकलीफों के बीच में अंततः परमेश्वर की महिमा को ही हम देख पाते हैं। It is for that reason these people were able to stand even the test of fire by knowing that God will be with them no matter what. और इसलिए ये तीनों जवान बच्चे जो हैं इस तकलीफ के बीच में भी वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास किए, क्योंकि विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ हैं। Lot of times we may be going through such a kind of situation, a situation of fire in all of our lives. हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कई बार हम इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरते हैं जहाँ पर आग या जहाँ धधकती हुई भट्टे की तरह चीजें हमारे सामने हो। Understand this one. God may not remove the fire, but He is going to be along with us even in the fire. और हम इस बात को याद रखें कि इस तकलीफ के समय में उस धधकते हुए भट्टे को अलग नहीं करेंगे परमेश्वर, परंतु उस भट्टे में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। Let us not be anxious or tensed about the fire that is coming in our lives. और इसलिए कभी भी हम उस प्रकार के धधकते हुए भट्टे को देखकर हम परेशान ना हो कि आपके जीवन में क्यों ऐसा हुआ है। Let us be confident that God is going to be present with us no matter what. और इसलिए हम इस बात को याद रखें कि परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, इस बात को जानकर हम आगे बढ़ें। Even in the coming elections, और आने वाला जो इलेक्शन हमारे सामने है, no matter what is going to happen, हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। it is only important that we believe that God is going to be with His church. और हम केवल इसी बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपनी इस कलीसिया को बढ़ाते जा रहे हैं। And we also need to understand that God is the one who will go to any extent to protect His church even in this well. और इसलिए परमेश्वर की ये कलीसिया है, इस कलीसिया को बचाने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। He has done in the past, He is doing now, and He will do the same even into the future. और परमेश्वर पिछले दिनों में इस प्रकार के घटनाओं के बीच में कलीसिया को बचाया, फिर उसके वर्तमान में भी बचाए हैं, आने वाले दिनों में भी, भविष्य में भी परमेश्वर अपनी कलीसिया को सुरक्षित रख सकते हैं। Understand that. Let us not be tensed or anxious about anything that is going to happen to the Church of India. और इसलिए कभी भी हम चिंतित होकर, निराश होकर ये ना सोचे कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश की कलीसिया का क्या होने वाला है। Nothing is going to happen. कुछ भी होने वाला नहीं है। God is going to be with us. परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले हैं। God is going to strengthen us. परमेश्वर हमें और भी मजबूत देंगे, And the मजबूती Lord is करेंगे। going to purify us in the time of testing. और परमेश्वर जो है हमें और भी पवित्र बनाएंगे इस तकलीफ के समय में। Towards the end, definitely, the church will eventually be benefited. और अंत में हम क्या देखते हैं कि कलीसिया को जो है बहुत से लाभ होने वाला है। And eventually, we also see the chaff will be removed. और हम देखते हैं कि जो भी वहाँ पर भूसी है वो सब जलाई जाएगी, अलग की जाएगी। And we need to understand the presence of God is always going to be with us. और हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। And Daniel, book of Daniel, there are so many things we can really speak about. और इस परमेश्वर के इस
दास या दानियल की किताब में हम बहुत सी ऐसी बातों को हम सीख सकते हैं। But I'm closing here and try to understand that these people knew their God and they stood strong in the time of testing. और हम क्या देखते हैं इस किताब में कि तकलीफ के समय में ये लोग जो है वो अपने विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर के साथ खड़े रहे। So it is so important. The knowledge of God will keep you from all evil. परमेश्वर का ज्ञान जो है वो हमेशा हर प्रकार के दुष्कर्म से आपको बचा सकता है। It will keep you from destruction. उसे वो आपको नुकसान होने से बचा सकता है। It will keep you from falling away. वो आपको परमेश्वर से दूर हटने में भी बचा सकता है। It's for that reason we need to have a right kind of relationship with the Lord whom we are serving even this evening. और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ते को लेकर हम आगे बढ़ें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। It is my prayer that God will enable all of us to know more about Him very personally in order that we may be strong and in order that we may be doing great and mighty things even in this world. परमेश्वर आप सभी की सहायता करे कि इस तकलीफ के समय हर परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ रहकर आपके विश्वास को मजबूत करके आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आप उन परमेश्वर के पवित्रता में बढ़ सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। Thank you and God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की स्तुति हो।